କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରର ବିପଦ ଟଳିବା ପୂର୍ବରୁ ଏବେ ଘାରିଲାଣି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତୃତୀୟ ଲହରର ଚିନ୍ତା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର କିମ୍ବା ଅକ୍ଟୋବରରେ ତୃତୀୟ ଲହର ଆସିବା ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କର ଆକଳନ ପରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଟେନସନ୍। ତୃତୀୟ ଲହରରେ ପିଲାମାନେ ବେଶୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଗଞ୍ଜାମରେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଡିଏମ୍ଇଟି କହିଛନ୍ତି ଯେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ପାଳନ ଏବଂ ବାପା ମା ସଚେତନ ହେଲେ ଛୁଆମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ। କରୋନାର ପ୍ରଥମ ଲହରରେ ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ବୟସ୍କ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ। ଆଉ ତୃତୀୟ ଲହର ଆସିଲେ ଶିଶୁମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ। 1 ରୁ 18 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଶିଶୁ ଏବଂ କିଶୋରମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଏବେଠାରୁ ବଢ଼ିଲାଣି ଚିନ୍ତା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବର ବେଳକୁ ଥାର୍ଡ ୱେଭ୍ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ପୂର୍ବରୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସେତେଟା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନଥିଲା, ଫଳରେ ଅଧିକ ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ସହିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଢେର ବଢ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ ତୃତୀୟ ଲହରକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଏବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ଏଏନ୍ଏମ୍ ଏବଂ ଆଶା କର୍ମୀମାନେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ସହିତ ଥର୍ମାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଜନଗହଳି ସ୍ଥାନକୁ ନ ନେଇ ଘରେ ରଖିବା, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ସହିତ କୋଭିଡ୍ ନିୟମକୁ ମାନିବାକୁ ସଚେତନ ବି କରାଯାଉଛି। 0 ରୁ 5 ଇୟର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କାନ୍ କରାହେଉଛି, ଦେଖାହେଉଛି ତାଙ୍କର ସ୍କାନ୍ କରି ତାଙ୍କର କେତେ କ'ଣ ହାର୍ଟ ଇଏ ଅଛି ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ 60 ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାହେଉଛି, 60 କମ୍ ଆସିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମର ଏକ୍ସପର୍ଟ ମାନଙ୍କର ଫୋରକାଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବର ବେଳକୁ ଆସିପାରେ। ଏଥିରେ ପେଡ଼ିଆଟ୍ରିକ୍ ବା ଏଡୋଲେସେଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ ବେଶୀ ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେବେ। ଶିଶୁ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଶୈଳୀ ଟିକେ ଭିନ୍ନ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦରକାର। ଆମର ସେପାଇଁ ସରକାର ଡିସାଇଡ୍ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ବେଡ୍ ବଢ଼େଇବୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜୁନ୍ 7 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 46,408 ଜଣ ଶିଶୁ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି 12 ଜଣ ପିଲା କୋଭିଡ୍ରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଲହରରେ ଶିଶୁ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ି ବି ପାରେ। କୋଭିଡ୍ ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପିଲାମାନଙ୍କ କୋଭିଡ୍ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ଏବଂ ମେଡିସିନ୍ ମହଜୁଦ ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। 1114 ଡାକ୍ତର ଏବଂ 1036 ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ଶିଶୁଙ୍କ କୋଭିଡ୍ ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ପର୍କରେ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ। ସେହିପରି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 2390 ଆଇସୋଲେସନ୍ ବେଡ୍ ଏବଂ 610 ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ, କୋରାପୁଟ ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସେରୋ ସର୍ଭେ ବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବି ହୋଇଛି। ତୃତୀୟ ଲହର ପାଇଁ ଆମେ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛୁ। ସମସ୍ତ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ଏଚଡିୟୁ ବେଡ୍ ସହିତ ସମସ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶଯ୍ୟା ସଂରକ୍ଷିତ କରାଯାଇଛି। ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ବାପା ମାମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ମାନିବା ସହିତ ଛୁଆମାନେ ଘରେ ରହିବା ଏବଂ ବାପା ମା ସଚେତନ ହେଲେ ଛୁଆମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ବୋଲି ଡାକ୍ତର ଶିବିକେ ମହାନ୍ତି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର ବିଷୟରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ସେହି ସବୁ ନିଜେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ବି ସେଇଆ ଶିଖାନ୍ତୁ। କ୍ରାଉଡ଼ିଂଟାକୁ ବି ସେମାନେ ଆଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ବି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ମେଡ଼ିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଟିକା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ପିଲାଙ୍କୁ ସେତେ ଶୀଘ୍ର କରୋନା କବଚ ମିଳିପାରିବ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସାହୁ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଭାଗୀରଥୀ ସାହୁ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ହରିହର ଚାନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି। ସେପଟେ ଆସନ୍ତା 6 ମାସ ଭିତରେ ଦେଶରେ ଆସିପାରେ ଆହୁରି 6ଟି ନୂଆ କରୋନା ଟିକା, ଏହା କହିଥିଲେ ନୀତି ଆୟୋଗର ସଦସ୍ୟ ଡକ୍ଟର ଭିକେ ପଲ୍। ଦେଶରେ ଏବେ କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଏବଂ କୋଭିସିଲ୍ଡ ସହିତ ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଭି ଟିକା ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୋଭିଡ୍ ଟିକାକରଣର ଅଭିଯାନ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ। ଡକ୍ଟର ପଲ୍ଙ୍କ ସୂଚନା, ଆଗାମୀ 6 ମାସ ଭିତରେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଇ ଟିକା, ଜାଇଡସ୍ କ୍ୟାଡିଲାର ଡିଏନ୍ଏ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, ଜେନୋଭାର ଏମ୍ଆର୍ଏନ୍ଏ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, ନାକପଡ଼ାରେ ସ୍ପ୍ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ନ୍ୟାଜଲ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, ସେରମ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ନୋଭାଭ୍ୟାକ୍ସ ଆଦି ଟିକା ପ୍ରଚଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ଜନସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜନସନ୍ ଟିକାର ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। कोरोना संक्रमण केते मात्रा रे व्यापी केते लोकंक देहरे एंटीबॉडी सृष्टि होईछि से सबकु नै ओडिसार 3टी जिल्ला सहित देशर मोट 70टी जिल्ला रे चतुर्थ पर्याय सेरो सर्वे आरंभ होगा पई जाउछि। गंजाम, रायगड़ा और कोरापुट जिल्ला रे आसंता 16 रु सेरो सर्वे आरंभ होगा। गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि जे थर सेरो सर्वे रे 6 वर्ष ऊर्ध्व शिशुंक मध्य शामिल कराजिवो। प्रति जिला को 10टी लेखाएं क्लस्टर करा जाय सेरो सर्वे कराजिवो। आसंता 22 तारिख रु 24 तारिख भितर सेरो सर्वे शेष करबा पई टार्गेट रखिछि आरएमआरसी। जून 7 तारिख में समस्त को मागणा टीका घोषणार दिनक पर आसीथिला
टीकाकरण को नहीं केन्द्र परिवर्तित गाइडलाइंस जो टीका अपचय कले जोगाण प्रभावित होगा और ऑनसाइट रजिस्ट्रेशन उपर रही फोकस एपटे जून 21 रु परिवर्तित गाइडलाइंस अनुसार टीकाकरण आगे राज्य सरकार पक्षर प्रस्तुत होची योजना तेणे डीएमईटी कहते डबल डोज टीका नेले गुरुतर होना रोगी माने 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। प्रधानमंत्री एही घोषणा राज्य सरकार आनी बड़ आश्वस्ति दूर होईछि टीका टेंशन। जून 21 तारिख ठारू 18 वर्ष अधिक समस्त मोदी सरकार मागणारे टीका जोगाईदेवे से जारी होईछि परिवर्तित गाइडलाइंस। यह अनुसार वैक्सीन अपचय कले टीका जोगान में नकारात्मक प्रभाव पड़ पारे। गुरुत्वपूर्ण कथा हला युववर्गों लगी पूर्वर कोविन साइट रे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बाध्यतामूलक थिबा बेले एणिकी ऑनसाइट पंजीकरण व्यवस्था मध्य रहिबो। स्वास्थ्यकर्मी सम्मुख योद्धा 45 वर्ष अधिक वयस्क द्वितीय डोज टीका नेबाको अपेक्षारत व्यक्ति को प्राधान्य दियाजिबो। अन्यपक्षे 18 वर्ष अधिक काहाको अग्राधिकार भित्तिरे टीका दियाजिबो से निर्णय राज्य करिबो। सेहीपरि राज्यर लोकसंख्या रोगी अनुपात टीकाकरण देखि टीका आवंटन कराजिबो। केन्द्र केते टीका जोगाइबो आगुआ राज्य मानकु अवगत करिबो। यह द्वारा राज्य मानकु टीकाकरण रे सुविधा हबो। तेबे नुआ गाइडलाइंस अनुसार 21 रु केमिति हेबो टीकाकरण सेथिपई प्रस्तुत हेउछि योजना। 18 रु 44 वर्ष एवं 45 वर्ष अधिक समस्त मिसाई राज्य में प्राय 3 कोटी 9 लाख लोकों को टीका दियाजिबाको लक्ष्य रखा जाइछि। तेबे आगुकु सबुठारु बड़ चैलेंज हेबो केते टीका केन्द्ररु आसिबो एवं एहार किभଳି सुवितरण कराजिबो। आगुरु आमर इम्युनाइजेशन चालूला बेसलाइन पर्यंत आमर सब सेंटर लेवल पर्यंत आमर इम्युनाइजेशन सेंटर करने को आमर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी आगुरु अच्छी आमर साइट अच्छी आमर लोक अच्छा ओनली वैक्सीन अवेलेबिलिटी आउ को गाइडलाइन करा विल जस्ट फिट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे रहिबो जे प्रोक्योरमेंट आउ वैक्सीन प्रोडक्शन को कैपेसिटी को अप करिया पड़े जो कंपनी माने करचंती गवर्नमेंट तांको टाइमली प्रोक्योरमेंट करिवो आउ स्टेट मान को सप्लाई करिवो सेटा तांकर हेडेक तब स्टेट रो काम हैला जे केमति प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हबो। सेबडे टीकाकरण को नहीं उत्साहप्रद खबर आसबार लगी। डीएमईटी डॉक्टर सीवीके महांती कहते जे टीका नेबा द्वारा कोरोना रोगर सिवियरिटी कमिबो। पूर्वर मध्य दिल्ली एम्स पक्षरु प्रकाशित रिपोर्ट रे कहुଯାଇଥିଲା कोविड टीकार 2टी डोज नहीं परवर्ती समय कोरोना रे संक्रमित होइतबा कोनोसी रोगींकर मृत्यु होई नाही। टीका नेला परे सिवियरिटी ऑफ द डिजीज कमिबो तेणु आमे भी आशा करिवा जे भविष्य रे सेही धारा बजाय रहो तेणु लोक मानकर सिवियर डिजीज रो संख्या कम। एबडे केंद्र सरकार समस्त टीका मागणारे जोगाइबाको घोषणा करिबा परे टीका पई राज्य सरकार डाकितिबा ग्लोबल टेंडर रो आउ आवश्यकता पड़िबो नाही। मोदी को घोषणा परे सही आर्थिक चाप मध्य राज्य सरकार उपरु हटि जाइछि। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन संतोष तराई सहित हरिहर चांद का रिपोर्ट ओटीवी। राज्य में कोरोना संक्रमण कमुथिबारु अनलक प्रक्रिया आरंभ होबार संभावना एवं उज्जवल होछि। जून 17 तारिख पर जो जिले में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट बा टीपीआर 5% रु कम थो सेठारे धीरे धीरे अनलक प्रक्रिया आरंभ हो बोली स्वास्थ्य विभाग पक्षर सूचना मिली। तेज खोर्धा कटक जाजपुर और पुरी भली केतक जिले में संक्रमण आखिदृश्या भाव में कमु नथिबारु सेथिपाई स्वतंत्र स्ट्राटेजी कराजिबो। राज्य में कमुछि कोरोना संक्रमण लगातार खसी चली टेस्ट पॉजिटिविटी रेट। तेणु जीविका को गुरुत्व दे धीरे धीरे अनलक प्रक्रिया को जीव राज्य। बड़ प्रश्न होछि जे राज्य में कौन रहिबो अनलक प्रक्रियार रूपरेख क्यों क्यों जिले में किभଳି अनलक प्रक्रिया लागू हेबो एहा उपरे विचार विमर्श जारी रखिछि स्वास्थ्य विभाग। विभाग सूचना अनुसार 12टी जिले में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 5% रु कम रही अर्थात एसबू जिले में प्रति 100 जनकर कोविड टेस्ट रे 5 जन रु कम पॉजिटिव चिन्हट होती। सेहीपरि 5 रु 10% टीपीआर रही 11टी जिला। बड़का 7 जिले में एवं 10% रु अधिक टेस्ट पॉजिटिव रेट रही। 5% रु कम टीपीआर थिबा जिलागुड़िक राज्य सरकार अनलक प्रक्रिया को जाईपारती। सेबड़े खोर्धा कटक जाजपुर केन्द्रापड़ा नयागढ़ पुरी और मयूरभंज जिले में पॉजिटिविटी रेट एवं 10% उपर रहुत्बारु एसबु जिलापाई कराजिबो स्वतंत्र रणनीति। एठारे टेस्टिंग संख्या बढ़ाजिबा सहित टीकाकरण को त्वरान्वित करने को योजना करा जायछि। आपको जिते आम अनलक करवा ग्राजुआल अनलकिंग सदाबले भल जिनस सब स्टेट रे भी देखिए जो जगह अनलकिंग होउची सेठी ग्राजुआल अनलकिंग हो निश्चय भाव में जोटी 10% ऊपर को रहिबो सेठी हमर कटकणा लागू रहिबा दरकार। जोटी 5% तल को गलानी सेठी खोला हवा दरकार किंतु शेषम निष्पत्ति
सरकार स्तर में हम। पूर्वर दिल्ली मुंबई भली मेट्रो सिटी रे पर्यायक्रमे अनलक प्रक्रिया लागू हो सारी। दिल्ली रे ऑड इवन फॉर्मूला रे दुकान गुड़ी को खोलिबा को अनुमति दिया जायछि, अर्थात जुग्म अजुग्म नंबर अनुଯାयी दुकान गुड़िक दिने छाड़ी दिने खोला जाउछि। तेबे गली दुकान एवं गोटिकिया दुकान सबको सबुदिन खोलिबा को अनुमति मिलिछि। सेबडे महाराष्ट्र रे लागू होइछि 75 स्तरीय अनलक व्यवस्था। पॉजिटिविटी रेट एवं ऑक्सीजनेटेड बेड रे रोगी संख्या को नहीं लेवल 1 रो लेवल 5 चिन्हट करा जायछि। लेवल 1 अंचल पई कम कटकणा थिबा बेले लेवल 5 अंचल पई सबुठारु कड़ा कटकणा लागू होइछि। स्वास्थ्य विशेषज्ञ मतरे ओडिशा रे मध्य पर्यायक्रमे अनलक करा जिबा उचित, किंतु कटकणा निहाती रहिबा आवश्यक। जेमिति कि मॉल, पार्क, जिम, धार्मिक एवं शिक्षानुष्ठान संपूर्ण बंद रहिबा दरकार। ता सहित नाइट कर्फ्यू, सप्ताहांत शटडाउन, दुकान बाजार पई एसओपी जारी करिबा एवं सरकारी एवं बेसरकारी ऑफिस रे कम संख्यक कर्मचारी को नहीं काम करिबा परे फोकस देबा दरकार बोली विशेषज्ञ मत दैछन्ति। मंदिर है, पार्क है, जिम, मॉल आउ स्कूल कॉलेजेस युवा जब आम बंद रखा ताहले आम फेज वाइज या खोल दे पारिबा। या द्वारा आम कोरोना पर आउरी कंट्रोल करि परिबा। और वीकेंड शटडाउन गुड़ा आउ इवनिंग कर्फ्यू गुड़ा जारी रखा कथा। इवनिंग माने गोटे कर्फ्यू टाइप रे करले एकाठी 5 ରୁ 7 लोक एकाठी हो पारिबेनी। सीटा जदि रेस्ट्रिक्शन कर देबे, दुकान गुड़ा को तांकर एसओपी दे देबे, तुम दुकान एमती खोलियो एमती ऑपरेट करिवो। 2 सप्ताह भीतर जदि रेस्पॉन्स ठीक रहला तापर फिर ग्रेजुअल रिलैक्सेशन करिवे। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन ओमकार महांती सहित हरिहर चांद का रिपोर्ट, ओटीवी। बात्या यास परवर्ती स्थितिर अनुधान और क्षयक्षतिर आकलन कर गत 8 तारिख में दिल्ली फेरी जाइछन्ति केंद्रीय टीम। यह टीम 2टी भागरे विभक्त होई केन्द्रापड़ा और मयूरभंज प्रभावित अंचल बुली देखिଥିଲେ। केन्द्रापड़ा को जाई एक 3 जणिया दल राजकनिका भारिगदारे पहुंची पनीपरिबा फसल नष्ट स्थान परिदर्शन करने सहित क्षतिग्रस्त चाषी आलोचना करथिले। परे नलितापाटिया रास्ता क्षयक्षतिर अनुधान करने सहित डांगमाल अरण्य निवास रे क्षयक्षति संपर्क में जिला प्रशासन सहित आलोचना करथिले। परे टीम बराडिया स्थित भांगी जाइथिबा सबस्टेशन, तालचुआ, नलितापाटिया रास्तार क्षयक्षति देखा सहित लोकों आलोचना करथिले। प्राय 70 कोटी अधिक टंकार संपत्ति नष्ट होइथिबा नै रिपोर्ट दिया जाइथिला। सेभଳି बारिपदारे 4 जणिया टीम कुआमरा, चुलियापोसी और खिलाड़ी आदि गाँव को जाई बात्या क्षतिग्रस्त सहित आलोचना करथिले। यह टीम बात्यारे भांगिथिबा घरद्वार उपुड़ी पड़िथिबा गछ और विपर्यस्त विद्युत सेवा आदि बुली देखिथिले। जिला प्रशासन केंद्रीय टीम को प्राथमिक आकलन एक रिपोर्ट देथिला। 2021-22 खरीफ ऋतु पर धानर सर्वनिम्न सहायक मूल्य बा एमएसपी वृद्धि घोषणा करथिले केंद्र सरकार। धानर एमएसपी क्विंटाल पिछा 72 टंका वृद्धि पाई। आगरू यह 1868 टंका थिला बेले वर्तमान धानर सर्वनिम्न सहायक मूल्य बा एमएसपी 1940 टंका होइछि। अन्य कृषिजात द्रव्यर एमएसपी मध्य वृद्धि करिसेंति केंद्र सरकार। आर्थिक व्यापार संपर्कित कैबिनेट कमिटीर अनुमोदन अनुसार राशिर एमएसपी क्विंटाल पिछा सर्वाधिक 452 टंका वृद्धि करा जायछि। सेभଳି बाजरार 100 टंका, मकार 20 टंका, हरड़ डालीर 300 टंका, बिरीर 300 टंका, मुगर 79 टंका, चिनाबादाम पाई 275 टंका, सूर्यमुखी बिहन 130 टंका, हलदिया सोयाबीन 70 टंका, मध्यम कपा क्विंटाल पिछा एमएसपी 211 टंका, लंबा कपार एमएसपी क्विंटाल पिछा 200 टंका वृद्धि करा जायछि। केंद्र कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यार घोषणा करथिले। कोविड संक्रमण थमी नथिबारु गत वर्ष भली एथर भी केवल पुरी रे बिना भक्तर हेब महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर रथयात्रा। राज्यर अन्य कौनसी स्थान में रथयात्रा पर अनुमति दिया जिवो नाही। राज्य सरकार पक्षरु एभली निष्पत्ति को श्रीमंदिर सेवायत स्वागत करिसेंति। पुरी प्रशासन मध्य गत वर्षर अभिज्ञता को आधार करी यात्रार आयोजन करिवो बोली कहिछि। तेबे बारिपदा जगन्नाथ मंदिर सहित केन्द्रापड़ार बलदेवजीउ मंदिर सेवायत किंतु शह शह वर्षर परंपरा रक्षा लगी कोविड कटकणार रथयात्रा पर अनुमति देवाकू सरकार को निवेदन करिसेंति। महामारीर महाकोप भितरे एवर्ष भी हेब श्रीक्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा। हेले गत थर भली एथर किंतु बड़दाण्डरे हेबनी भक्तों सह भगवान को मिलन। कोविडर द्वितीय लहर संक्रमण जारी रही केवल पुरी रे घोषयात्रा करने को निष्पत्ति नेइछंती राज्य सरकार। राज्यर अन्य कौनसी स्थान में गड़बनी रथ। स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर प्रदीप जेना एने विस्तृत सूचना दे कहिछंती गत वर्ष पुरी रे रथयात्रा बेले जेउ भली कटकणा थिला ए वर्ष सेमिति रहिबो। रथयात्रा रे भक्तों को संपूर्ण बारण करा जायछि। जेउ सेवायत माने रथयात्रा रे शामिल हेबे सेमाने कोरोना टीकार 2टी जाक डोज नैथिबे किंबा 48 घंटा पूर्वरु आरटीपीसीआर रिपोर्ट रे नेगेटिव थिबा बाध्यतामूलक। रथयात्रा बेले कोविड कटकणा और सामाजिक दूरत्व मानिबा नित्यांत जरूरी। रथयात्रा पई पुरी सहर रे कर्फ्यू लागिबो। सहर को गाड़ी मोटर चलाचल उपरे कटकणा लगाजिबो।
घरे बसी लोके जेपरी रथयात्रार सानिध्य पाइबे तार सीधा प्रसारण दायित्व सूचना और लोकसंपर्क विभाग नेब। रथयात्रा गत वर्ष भली कटकणा भितरे श्रीमंदिर श्रीजगन्नाथ महाप्रभुंकर रथयात्रा पुरी रे करिया पई निष्पत्ति निया जाइछि एवं सही क्रम रे गत वर्ष जेमती माननीय सुप्रीम कोर्टंकर आदेश बल रे जेमती आम रथयात्रा केवल पुरी रे करथिले एवं अन्य समस्त मंदिर देवास्थली रे जेमती आम रथयात्रा बंद करथिले ए वर्ष मध्य कोविड द्वितीय लहरी परिप्रेक्षी रे जनस्वार्थ को आखिरे रखी केवल पुरी को छाड़देले अन्य समस्त जगार रथयात्रा निषेध करने आदेश देइछन्ति। जेभली भाव में गत वर्ष रथयात्रा पुरी रथयात्रा रे कौन भक्त भाग नहीं नथिले ए वर्ष मध्य भक्त मानक बारण करा जाइछि। पुरी रे भक्त शून्य रथयात्रा पाई राज्य सरकार गाइडलाइन्स यथासंभव अनुपालन लगी प्रस्तुति आरंभ करिछि जिला प्रशासन। गत वर्षर अभिज्ञता सांगकु वर्तमान कोरोना स्थिति को देखि एथर रथयात्रा पाई स्वतंत्र एसओपी प्रस्तुत हेबो बोली कहिसंति जिलापाल। तेबे ता पूर्वरु श्रीमंदिर प्रशासन छत्तीसा निजोग और पुलिस प्रशासन सह विस्तृत भावे आलोचना कराजिबो। सेपटे आगकु श्रीजीवଙ୍କ स्नान यात्रा तापरे अनवसर नीति और शेषरे रथयात्रा गोष्ठीगत सेवा होइतिबारु एसबु नीतिकांति सह संपृक्त समस्त सेवायतंकु शीघ्र डबल डोज कोरोना टीका देबाकू दाबी करिसंति वरिष्ठ सेवायत। सर लास्ट टाइम एटा करा जाइतला सुप्रीम कोर्ट निर्देश प्रकार सही अनुपात रे मध्य हमर जोटा छत्तीसा निजोग रे मध्य मीटिंग डका जीवो तो छत्तीसा निजोग मीटिंग रे बैठक रे आलोचना हेगी सही अनुसार हम जो भाव में कोविड लहर बर्तमान व्यापी और संक्रमण मृत्युहार अधिक अच्छी से दृष्टि सरकार जो निष्पत्ति नहीं आम तक स्वागत करूँ। जो मैंने कोविड कटका जोड़े डोज टीका ने सेवा करेंगे किंतु या भितर कौन दैतापति है गोष्ठीगत सेवा तेणुक कोविड माने डबल डोज टीकार आवश्यकता रोचे। आम रथ यात्रा को बिना भक्ति करने पूरापूरी भाव में प्रस्तुत अच्छु और प्रस्तुत हो ऑलमोस्ट आम फर्स्ट डोज सबू सेवायत मान कराई देछु और गवर्नमेंट को भी मुझे धन्यवाद देवा चाहूँ। सेकेंड डोज आम अति शीघ्र स्टार्ट करने जाऊँ जेहेतु किसी टाइम गैप जिनस रोचे आम गोटे रिक्वेस्ट लेटर भी गवर्नमेंट को पठेछु ताछड़ा एमती समस्त संगे डिस्कशन करके आम गोटे एसओपी तैयारी करूँ। तेबे आसंता जुलाई 12 रे केवल पुरी रे रथयात्रा हेबो और ठाकुर बाहर को आसिबे। हेले राज्यर अन्य सबु जगन्नाथ मंदिर परिसर रे ही घोषयात्रा नीतिकांति पालन हेबो बोली सरकारक निष्पत्ति को सहजरे ग्रहण करि पारि नाहंती किछि प्रमुख मंदिरर सेवायत और कर्मकर्ता। तेणु पुरी भली सेमानकु मध्य कोविड कटकणा रे रथयात्रा आयोजन पई अनुमति देबाकू राज्यर केतक जगन्नाथ मंदिर कर्तृपक्ष सरकारकु निवेदन करिसंती। ए वर्ष जो बाहर जहाँ नीति आ रथर अक्षय तृतीया दिन जो शुभारंभर कार्य भी संपन्न हो सारी तेणु रथयात्रा बंद निष्पत्ति को सरकार विड्र करूँ मुझे माध्यम सरकार को अनुरोध करुच्ची। जार परंपरा संस्कृति ने कि आज ओडिया जाति सारा विश्व में वंदनीय आज तार रथयात्रा बंद हो जाऊँ दुख कौन हो पारे आज्ञा। गत वर्ष जेहेतु पुरी को आदिपीठ करी आपंकर आईनगत ये नेले किंतु 14 वर्ष यथेष्ट समय अच्छी यथेष्ट सुजोग अच्छी राज्य सरकार या विषय पुनर्बार विचार करने दरकार। ब्यूरो रिपोर्ट ओटीवी। झारपड़ा जेलु गतकाली मुकुली गोपालपुर विधायक प्रतीक पाणिग्राही षष्ठ मामलें जमिन पाइबा पर से जेलु मुकुली। शुक्रवार दिन हाइकोर्ट तांको जमिन प्रदान करते। गत डिसेम्बर 3 तारिख में प्रदीप को ठकई अभियोग में गिरफ्त करथिला क्राइमब्रांच। विरोध में आसीथिबा जालियाती और टंका ठकई अभियोग सहित बैंक अकाउंट को क्यों 2.5 कोटी टंका आसीथिला तार जांच चली। सहित प्रदीप अकाउंट भाभी ज्वाई तथा आकाश पाठक अकाउंट को ट्रांसफर होता 50 लाख ऊर्ध्व टंका संपर्क में भी खोलताड़ चली। पूर्वतन आईएफएस अभयकांत पाठक आय बहिर्भूत संपत्ति और पुओ आकाश पाठक जालियाती सहित से प्रदीप भूमिका संपर्क में पृथक पृथक तदंत चली। प्रदीप मामला लड़ुते वरिष्ठ आईनजीवी पीतांबर आचार्य। पश्चिमबंगर हेवीवेट नेता मुकुल रॉय बीजेपी छाड़ी पुणी थे तृणमूल कांग्रेस को फेरी। गत शुक्रवार दिन मुकुल सहित पुओ शुभ्रांशु रॉय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उपस्थित में टीएमसी को फेरी। कोलकाता कार्यालय में होता मिश्रण पर्व। एकता ममता बेस निकटतर और टीएमसी रे द्वितीय क्षमता केन्द्र थिबा मुकुल 2017 मसीह बीजेपी रे जोग देथिले। उपसभापति भली गुरुत्वपूर्ण पदवी मिलता। 2019 साधारण निर्वाचन में बीजेपी मंग धरिथिले मुकुल। लोकसभा निर्वाचन में बीजेपी सफलता श्रेय भी मिलता। तेज विधानसभा निर्वाचन में बीजेपी फेल मारिबा परे दुई बाप पुओ पुणी थे दीदी शिविर को फेरी आसते।
कोरोना पाई व्यवहृत औषध रेमडेसिविर उपरू केंद्र सरकार कमाई देइछन्ति जीएसटी। रेमडेसिविर उपरू जीएसटी 12% रु 5% को ह्रास करिसेंति केंद्र सरकार। गतकाली 44तम जीएसटी काउंसिल बैठक पर यह सूचना देथिले केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। सेभଳି ब्लैक फंगस पाई व्यवहृत दुईटी औषध उपरू टिकस संपूर्ण उठाई दिया जाइछि। एणिकी टोस्लिजुमाब एवं एम्फोटेरिसिन बी उपरे कौनसी टिकस लागिब नाही। पूर्वरु यह औषध उपरे 5% जीएसटी लागू हेउथिला। कोविड चिकित्सा व्यवहृत सरंजाम उपरू भी टिकस ह्रास करा जाइछि। पल्स ऑक्सीमीटर सहित विभिन्न व्यक्तिगत आमदानी उपरे थिबा जीएसटी 12% रु 5% को ह्रास करा जाइछि। हैंड सैनिटाइजर एवं उत्ताप मापक यंत्र रु जीएसटी 18% को 5% को कमाई दिया जाइछि। आंबुलांस उपर मध्य टिकस 28% रु 12% को ह्रास करिसेंति केंद्र सरकार। सेभଳି वेंटिलेटर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपर मध्य जीएसटी 12% रु 5% को ह्रास करा जाइछि। कोविड टेस्टिंग किट उपरू जीएसटी 12% रु कमा जाई 5% करा जाइछि। तेबे कोविड टीका उपरे जीएसटी 5% रहिबो बोली केंद्र सरकार स्पष्ट करथिले। गत शुक्रवार शेष निश्वास त्याग करथिले विशिष्ट परिवेशविद जैविक कृषि पाई परिचित तथा पूर्वतन सूचना कमिशनर प्रोफेसर राधामोहन। भुवनेश्वर एक घरे हस्पिटाल वियोग होता। मृत्यु बेलू 78 वर्ष बयस होता। गार्ड ऑफ ऑनर दिज्वा सहित राष्ट्रीय मर्यादार सह भुवनेश्वर सत्यनगर श्मशान में शेषकृत्य कर कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय अवदान पर 2020 प्रोफेसर राधामोहन और झी साबरमती को पद्मश्री मिलता। नयगढ़ में खाली पड़ा जमी जैविक चाष कर प्रोफेसर राधामोहन वैप्लविक परिवर्तन आनी। सूचना अधिकार आईन को लोकप्रिय कराइबारे प्रमुख भूमिका रही।